Hello everyone, welcome to the class. Uh, we are discussing on the chapters of Nazism and the rise of Hitler. We have already done the effects of war, but now in this lecture we will complete or maybe partially complete the topics of rise of Hitler as well. So first and foremost things, I'll just take a one topic that is called as after the effects of war, that is the political radicalism and the economic crisis in the Germany, because Germany was suffered from very fragile economy, as well as the Treaty of Versailles signed after the World War First give the huge impact on German economy and society, and lots of problems created in Germany and lead to conflict between the government, because one revolutionary socialist revolutionary group also created called as the Spartist League after become the Communist Party, German Communist Party, which is against the democratic principles or the democracy. They just try to establish the dictatorship, because they don't want to pay compensation to the countries like Denmark, Lithuania, France and Poland, and whatever losses that beard uh, by the country, German want to refuse that pay if they become dictator in their government system. So now let's take the topic Nazism and rise of Hitler. So in this chapter, our topic is political radicalism and economic crisis. Now in the political radicalism, there was one party emerged, or the sentiments emerged, that is called as the Spartist League. Spartacist League. These are the parties of conservatives. And they want dictatorship, because they felt the idea of democracy is very fragile. It means very weak. So they just wanted to replace the government by the form of dictatorship, and they just want to refuse the compensation to that countries who part of the elite superpowers. Okay, now conservatives followed the ideas which was implemented by conservatives in Russia. So during the Tsar monarchy, Russian conservatives also want to make some powers, and they just favor the dictatorship government. They don't believe in the democratic principles or the form of government which is called the democracy. So after some times, they rallied against Weimar
Republic. Who was having the Socialist Party? Socialist Party. But there were also nomenclature which used by the conservatives called as the November criminals, because November criminals used for the peoples who support the Weimar Republic, including the Catholics, then the Democrats and socialists. These are some German civilians or German people who supported the Weimar Republic, but Spartists did not like the ideas of democracy, so just rallied against the Weimar Republic. and rallied के बाद ये क्या किया कि फ्री कॉप्स बुला करके और इस स्पार्टिस्ट को क्या किया, वो सप्रेस किया. बट आफ्टर सप्रेशन द स्पार्टिस्ट लीग बिकम द जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी. Spartacist League become the German Communist Party. ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है. ये क्या हो गया, ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म हो गया, क्योंकि ये जो है ये सोवियत की तरह ही चाहते थे कि वहाँ पे कंजर्वेटिव्स जो अपना कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म किए थे और चाह रहे थे कि जो इंटरिम गवर्नमेंट जो था उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, और मेनली वो डेमोक्रेसी को कैसे भी करके वहाँ से हटाना चाह रहे थे. अब यहाँ पे इस केस में इकोनॉमिक क्राइसिस क्या आया कि जर्मनी जो था वो वॉर जो लड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फॉट वॉर मिलनी लोन पे वॉर लड़ा था, क्योंकि जितने भी सारे इसके पास फंड जो थे सब अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए पहले ये इन्वेस्टमेंट कर चुका था. इसके पास उस वॉर के टाइम में, उस वॉर में भी बहुत सारे जैसे फूड चाहिए, बहुत सारे चीज़, जैसे एक पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए होता है, मेडिकल हेल्प चाहिए होता है. इसके लिए उस टाइम में इसके पास पैसे इतने नहीं थे जर्मनी के पास ताकि वॉर को कंटिन्यू कर पाए. बट उसके बाद ये लोन लेना स्टार्ट करता है. इस लोन जो लेता है इसके वजह से उसे कंपनसेशन भी बाद में पे करने होते हैं. उसके बाद जब इसे पे करने का टाइम आया तो ये पे करना स्टार्ट किया. इट मीन्स रिपेरेशन मीन्स पेइंग समथिंग. ये गोल्ड में कर रहा था, बट रिसोर्स तो रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है. गोल्ड भी कभी न कभी ख़त्म होगा, रिसोर्स एंड होगा. इस केस में क्या हुआ कि गोल्ड भी स्कार्स हो गया. गोल्ड जैसे ही कम हुआ तो जर्मनी जो है रिफ्यूज़ कर दिया पे करने से. अब जैसे ही रिफ्यूज़ किया पे करने से, तो अब जो भी कंट्री लाइट पावर के कंट्री थे उनमें कंसर्न्स तो आएंगे कि भाई अपना लोन जो है वो वापस करो, अपना जो लोन लिए थे.
अब बाद में क्या किया कि फ्रांस जो है, फ्रांस इसके रूर वैली पे कैप्चर कर लेता है। और रूर वैली जो है ये है फेमस फॉर कोल, फेमस फॉर कोल। अब जब इसे समझ में आया कि नहीं, रिसोर्सेज पे अब दूसरा कंट्री अगर कैप्चर करता है, दूसरा कंट्री अगर हमारे टेरिटरी पे आके कैप्चर कर लेगा, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे कैप्चर कर लेगा, तो इकोनॉमी वैसे भी डाउनफॉल में होने ही वाला है। वॉर की वजह से डाउनफॉल ऑलरेडी हो चुका है। इस केस में रिटेलिएशन में क्या कहता है कि जर्मनी करेंसी का वो प्रिंटिंग करना स्टार्ट करता है। जर्मनी स्टार्टेड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। अब सोचा जो कैसे भी करके प्रिंट करके करेंसी को, और हम लोग क्या करेंगे, जो भी सारा लोन्स जो है वो कंट्री को हम लोग वापस कर देंगे। बट अब प्रिंट जो करेगा उस टाइम में जर्मन का जो करेंसी जो था, जर्मन करेंसी वो था मार्क। अब कोई भी कंट्री अपना इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर साइड करना चाहता है, कोई भी कंट्री अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हटाना चाहता है, तो नोट प्रिंट करना इट नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो इस केस में जर्मनी भी क्या करता है कि नोट प्रिंट करना स्टार्ट करता है। बट इस केस में प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे ही मार्केट में ज़्यादा पैसे आएंगे, उस केस में मनी का जो वैल्यू है वो डाउन होगा। डाउन होने की वजह से इन्फ्लेशन क्या होगा, उस कंट्री में बढ़ना स्टार्ट होगा। और इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन का एक सबसे हाईयर जो टॉप होता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, हाइपर इन्फ्लेशन। ड्यू टू दिस जर्मनी फेस्ड हाइपर इन्फ्लेशन। Hyperinflation, it means inflation more than 1000%। इकोनॉमिक्स के टर्म है, इन्फ्लेशन मोर देन 1000%। इट मीन्स जो सामान पहले 40 रुपये kg का मिल रहा था, वो उसका सामान का दाम हो गया डायरेक्टली 40,000 रुपये। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ करेंसी इज़ वेरी लेस डाउन। उस कंडीशन में कोई भी कंट्री जो सर्वाइव नहीं कर सकते है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही फ्रेजाइल होगा, वीक होगा, और एक्टिविटीज़ सारे के सारे जितने भी सारे इंडस्ट्रीज़ हैं सारे के सारे बंद होने वाले हैं। उस कंट्री में पैसे नहीं बचेंगे कि ताकि वो जितने भी सारे जो भी एम्प्लॉयड वर्कर है या फिर जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल पाए। इस कंडीशन में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गए। जो पहले एम्प्लॉयड थे वो बन गया अनएम्प्लॉयड। जिसके पास इंडस्ट्री रन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उस कंडीशन में एम्प्लॉयड तो है, बट जो एम्प्लॉयड एज वर्कर काम कर रहे थे, जो इनका सैलरी फिक्स था, उन सब पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आया। और उसके वजह से वो काम करने के लिए किसके अंदर में चले गए, वो जो एम्प्लॉयड है जो अपना इंडस्ट्री खुद का रन कर रहा है। इट मीन्स एम्प्लॉयड पर्सन बिकम अ वेज लेबर बन गया, वो डेली वर्कर्स बन गया वो। और इकोनॉमिक मतलब एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा लो लेवल के आ गया। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोलेटराइजेशन। फेस्ड एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अब इन अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इंक्रीज हो गया तो ये एक वर्चुअस साइकिल को क्रिएट करेगा जिसका नाम क्या था, प्रोलेटरलाइजेशन। ओके,
दिस इज़ द वर्ड। इट मीन्स जो पहले एम्प्लॉयड था वो कन्वर्ट किस में हो गया, अनएम्प्लॉयड में या फिर वेज लेबर में। जब अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में बढ़ेगा, इट मीन्स वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो लोग है, वो किसको प्रैक्टिस करेंगे, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ पे और ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। कहाँ पे, तो जर्मनी में। इस केस में भी यही हुआ, जर्मनी का इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गया और वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो लोग है, दे जस्ट ट्राई टू विलिंग टू वर्क। कोई भी काम हो उसे चाहिए, बट चाहिए उसे काम, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लाइवलीहुड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। तो प्रॉब्लम्स यहाँ आ गए। अब इस केस में क्या हुआ कि कैसे भी करके इस जर्मनी का जो प्रॉब्लम जो था, इसका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो था, इसको दूर करने के लिए अमेरिका लॉन्च करता है क्या चीज़, डेविस प्लान। अमेरिका launched Davis plan for removing the burden on जर्मनी। अब ये जो डेविस जो है, ये एक अमेरिकन बैंकर के नाम पे दिया गया है, जिसका नाम क्या था, चार्ल्स जी डेविस। चार्ल्स जी डेविस, ही वॉज द अमेरिकन बैंकर। इन केस इसमें क्या हुआ कि डेविस प्लान हेल्प तो किया जर्मनी को। जर्मनी स्टेबलाइज्ड फ्रॉम 1924 टू 1928। इस टाइम तक क्या हुआ कि ठीक है, जर्मनी का इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉल्व होता हुआ दिख रहा था। बट इसके बाद क्या हुआ कि 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर जाता है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। ये स्टॉक एक्सचेंज मीन्स वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन अमेरिका। अब क्या हुआ कि मार्केट जो था वो क्रैश कर चुका है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि लोग अपना शेयर पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो भी उसमें शेयर का जो इन्वेस्टर जो होता है वो कुछ ना कुछ उस स्टॉक एक्सचेंज से बेनिफिट चाहिए होता है उसको, तभी वो क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है। बट इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही एक्सचेंज मतलब क्रैश किया तो डॉलर का जो वैल्यू जो था
पहले तो वो फॉल डाउन तो होगा ही होगा, उसके बाद अमेरिका का जो इकनॉमी था वो भी पूरा हाफ हो गया, यानी कि उसको अमेरिका पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और अमेरिका हेल्प कर रहा था किसको, जर्मनी को। उस केस में क्या हुआ कि जितने भी सारे स्पेकुलेटर थे जो भी थे, जो भी स्पेकुलेटर, इट मीन्स हु इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये इंडिया का मार्केट है, वैसे ही ये कहाँ का मार्केट है, ये अमेरिका का मार्केट है। तो जो भी सारे स्पेकुलेटर जो थे ये सारे के सारे क्या किए, अपना पैसा जो था take money from the shares, take money from the shares। ओके, सेम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया। अब जैसे ही डिप्रेशन हुआ उस अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जैसे हुआ, तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा जर्मनी के ऊपर में आ गया, और जो पैसा इसको दे रहा था जर्मनी को, अब पैसा देना ये भी बंद कर दिया अमेरिका। अब जर्मनी के पास कुछ बचा नहीं, अब करे तो करे क्या। सेम इम्पैक्ट अब जर्मनी के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा अब बुरा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स, जैसे इंडस्ट्री वगैरह रन हो रहे थे, कुछ लोग वहाँ के काम कर रहे थे, उनका वेज आ रहा था, कम से कम सैलरी आ रहे थे, अब सारे के सारे बंद होने वाले हैं, क्योंकि पैसा है ही नहीं जो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए। जो पैसा था वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाने वाली है। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स और जर्मनी में बढ़ते चला गया, और इसके वजह से सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया। यही है क्या चीज़, प्रोलेटराइजेशन। इट मीन्स जो पीपल, जो पहले वर्कर जो थे वो सैलरी पे काम कर रहे थे, जो एम्प्लॉयड थे, बट इन केस ये क्या होगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और एक ये चेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और चेन प्रॉब्लम जैसे ही क्रिएट करेगा तो फिर प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा आने वाली है, किसके ऊपर में, ऑन दी गवर्नमेंट, ऑन दी वाइमार रिपब्लिक। इस केस में क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ता है किसके ऊपर में, गवर्नमेंट के ऊपर में। वाइमार रिपब्लिक get more pressure from public as well as from the German Communist Party, जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद क्या होता है हम लोग देखते हैं फिर से। प्रेशराइज्ड होने के वजह से गवर्नमेंट फॉर्म करना और गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था इस गवर्नमेंट को। और जब गवर्नमेंट कोई पार्टी में रहती है तो कुछ न कुछ
डेमोक्रेसी में क्या है कि मल्टीपल पार्टी होती है, और जब एक मेजर पार्टी अगर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है उस टाइम में 2 पार्टी 3 पार्टी आपस में मिल करके कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। कोएलिशन गवर्नमेंट। बट इस केस में क्या होता है कि मेजॉरिटी कोएलिशन गवर्नमेंट होने के बाद भी आपको मेजॉरिटी प्रूव करना होता है। बट इस केस में जब प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होने लगा, जब प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा पार्लियामेंटेरियन के ऊपर में, जो पार्लियामेंट्स में थे, रिस्टैग में थे, अब उनको लगा कि प्रॉब्लम्स तो रियल है, हमें तो सॉल्व करना चाहिए, बट अगर कहीं ना कहीं हम इस पार्टी को लेफ़्ट करते हैं तो थोड़ा सा जो बर्डन जो है मेरे ऊपर में थोड़ा ना कहीं वो कम होने वाला है। तो इसके वजह से जो पार्टी जो है वो एक अप्रोच करना स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या चीज़ है, डिफेक्शन। और डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग दी पार्टी। चेंजिंग दी पार्टी। तो 239 यानी कि 239 डेज़ में, आई थिंक कितना ही है, 239 डेज़ में 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, इट मीन्स 239 दिन में कम से कम जो है 20 ऐसे लीडर जो थे, जो पार्टी से डिफेक्शन फॉर्म करके उस पार्टी में जाना, इस पार्टी में आना, अपना दल बदल जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो चल रहा था इनके बीच में। तो वाइमार रिपब्लिक को लगा कि कंट्री में जो है वो फियर ऑफ डिक्टेटरशिप, बट इसके पास आर्टिकल 48 भी था। आर्टिकल 48 क्या है, दिस इज द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल। ताकि कैसे भी करके जर्मनी का जो सॉवरेनिटी जो है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है, डेमोक्रेसी जो है, उसको क्या करेंगे हम लोग सेव करके रखेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। क्योंकि अगर ये इम्पोज होता है किसी भी कंट्री के ऊपर में, तो जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, लिबर्टी हो गया, सब के सब ख़त्म हो जाते हैं। तो जर्मनी यही सेव करना चाहता था, वाइमार रिपब्लिक यही सेव करना चाहता था। बट ये सब जो प्रॉब्लम जो है वो हिटलर देख रहा होता है। और हिटलर जो है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो मैसेंजर का काम करता है, और फिर उसके बाद वो जर्मनी के कॉर्प्स का हिस्सा बनता है, यानी कि मिलिट्री का हिस्सा था, बट वो लोअर रैंक का था। But he is having the very nice courage and having some strong sentiments to fight against the countries like allied powers, including the France, UK, then the later joined by US and Italy. अब यहीं से राइज होता है किसका, हिटलर का।
एडोल्फ हिटलर। Born in Austria in 1889। ओके, इस वॉर के टाइम में इसका जो एज जो था वो इट मीन्स द एज ऑफ 25 ईयर्स, 24-25 ईयर्स ड्यूरिंग World War First। okay, in initial phase Hitler was messenger। क्या था वो? मैसेंजर था। बट बाद में ट्रस्ट डेवलप करने के बाद, इसके ऊपर में जब ट्रस्ट डेवलप हो गया तो इसको एक मिलिट्री रैंक दिया गया, बट रैंक वाज लोअर। But he is having some charismatic personality, he is having some aggressive personality. He joined the party called as the German वर्कर्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी। जब इसका इस पार्टी में इमेज बढ़ना स्टार्ट हुआ, इमेज जब ठीक ठाक मतलब एक अपने लिमिट से ऊपर आ गई है, ताकि मतलब लोगों के बीच में अगर ये रिप्रेजेंट करता है खुद को, तो ये लोगों को कैसे परसुएड कर पाता है। इट मीन्स कन्विंसिंग पीपल इन अ वेरी वाइज मैनर, and he is also having some mindset of propaganda, but I'll take after sometimes these type of words, because this is very negative sentiments word which is used by the propaganda ministers called as Goebbels, and the leaders is Adolf Hitler. So German Workers Party, then after leading party becomes Nazi party। नाजी पार्टी, और इसका क्या बन गया? वो हेड बन गया। और इनिशियल में जो चैप्टर में जो स्टोरी सुनाया गया है हेलमत का, हेलमत फादर was also part of this party। ठीक है। नाउ इसके सामने में प्रॉब्लम्स क्या क्या थे? सबसे पहले ये जब नाजी पार्टी को फॉर्म किया, तो जर्मनी का ही एक टेरिटरी है, लाइक इफ़ दी कंसिडर द मैप ऑफ जर्मनी, दिस इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ टेरिटरी, सदर्न पार्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट called as the Bavaria। और वो जर्मनी के कैपिटल यानी कि बर्लिन तक वो पहुंच करके, और उसके बाद वो बवेरिया को कैप्चर करना चाहता है। ठीक है, बवेरिया को जैसे ही कैप्चर करने के लिए निकलता है, इस बीच में वांट टू कैप्चर, जब कैप्चर करने के लिए निकलता है, तो इसी बीच में वाइमार रिपब्लिक के जो कॉप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्टेड।
नाउ ये सब कुछ अपने टाइम में, यानी कि जब नाज़ी पार्टी में जब फॉर्म कर रहा था, नाज़ी पार्टी को ज्वाइन कर रहा था, तो उसको ऑलरेडी पता था कि ये कंट्री के ऊपर में, जर्मनी के ऊपर में, जर्मनी का इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के ऊपर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। और किसके वजह से हुआ था? वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से जर्मनी का जो भी सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एरिया था, जो भी उससे प्रोडक्शन हो सकते थे, उससे जो भी अर्निंग हो सकते थे, सबको क्या करता है वो स्टॉप करवा करके, और जर्मनी को भी क्या करता है वो डीमिलिटराइज कर देता है, ताकि जर्मनी फिर से वो मेजर पावर या फिर सुपर पावर ना बन सके, और ताकि फिर से फर्दर जो है वो वॉर ना हो सके। इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल जो समझता है, वो समझता है कि इसको वाइमार रिपब्लिक को, क्योंकि ये डेमोक्रेसी अगर नहीं रहता, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रहता, तो हो सकता था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन ना हो। तो ये कैसे भी करके कहा चाह जो पहले एक बार गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए हमारे पार्टी का, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंट्री में डिक्टेटरशिप ला करके, और जर्मनी का जो सॉवरेनिटी पहले था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, उसको हम लोग कैसे करके भी रीगेन कैसे करें। तो उसके बाद क्या करता है कि जब इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में फर्स्ट टाइम जो ये 2.6% ही वोट अर्न कर पाता है। इसमें क्या होगा कि मेजॉरिटी बन नहीं पाएगा। बट इन अनदर इलेक्शंस ही गेट 37% वोट। ओके, 37% वोट क्या करता है वो एक्वायर कर लेता है, और एक्वायर करके वो जर्मनी का बिगेस्ट पार्टी बन जाता है, जर्मन बिगेस्ट पार्टी। अब जर्मनी का बिगेस्ट पार्टी बनेगा, तो इस केस में ये 1932 में बनता है। और इस केस में क्या हुआ कि हिटलर का जो फेस वैल्यू जो है, हिटलर फेस वैल्यू हाई हो जाएगा। अब जब फेस वैल्यू अगर हाई होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की जो पब्लिक जो है, वहाँ के जो लोग जो हैं, इसके आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। जो भी ये कुछ अपने कंट्री में चेंज करना चाहेगा, लोग उसको सपोर्ट करेंगे। सेम केस क्रिएट होता है यहाँ पे। और ये हिटलर जो रहता है ना, इनिशियल फेज में, इनिशियल और एंड हिज फेज, ये पावरफुल स्पीकर होता है। पावरफुल स्पीकर होता है, और पावरफुल स्पीकर होने की वजह से इसके साथ साथ करिस्मेटिक पर्सनैलिटी भी था ये। करिस्मेटिक पर्सनैलिटी। अब जब पावरफुल स्पीकर एंड करिस्मेटिक पर्सनैलिटी होगा, तो वो लोगों को परसुएड बहुत इजी से कर पाता है। इस केस में परसुएड और कन्विंस पब्लिक वेरी इजीली। और प्रोपेगेंडा एक कंटिन्यू करता है और क्रिएट करता है, अपने माइंड में बनाता है कि
जर्मनी के लोगों के बीच में कौन सा ऐसा बात कहा जाए, कौन सा ऐसा सेंटिमेंट डाला जाए ताकि लोग जो है हमें पसंद करें और अपने लीडर के फॉर्म में वो चूज़ करें। और जब प्रोपेगेंडा को हम लोग पहले मैनिफेस्टो बोलना चाहिए। जब मैनिफेस्टो पास करता है तो उस केस में क्या बोलता है कि जर्मनी जो जैसे सुपर पावर था, जर्मनी का जैसा इकोनॉमिक स्टेटस था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले, सेम जो हम लोग रीगेन करेंगे। और जर्मनी अभी डीमिलिटराइज जो हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, मिलिटराइज करेंगे। देन उसके बाद जो भी सारा ट्रीटी ऑफ वर्साइल में खास करके जो भी सारे पॉइंट जो थे, रिसोर्सेज जो भी कंट्री के पास गया, लाइक डेनमार्क, पोलैंड, फ्रांस, इस सब और लिथुआनिया, इस सब से क्या करेंगे, अपना सारे के सारे रिसोर्स भी लेंगे और ख़ास करके जितना भी सारा कॉम्पनसेशन जो है, कंपनसेशन को भी हटाएंगे, दूर करेंगे और जर्मनी को फिर से प्रॉस्पेरस बनाएंगे। तो इस सब के वजह से क्या होगा कि वहाँ के जर्मनी के जो लोग जो थे, जर्मन सेंटिमेंट के जो लोग जो थे, सबके माइंड में एक इमेज बन जाता है हिटलर के लिए एज मसीहा। अब पब्लिक इसको क्या करता है कि मानने लगता है क्या चीज़, मसीहा। हिटलर को मसीहा मानना स्टार्ट करता है और जब ऐसा होता है तो लोगों का सपोर्ट और भी हिटलर के फेवर में चला जाता है। हिटलर के फेवर में जैसे ही आएगा तो रैली में भी सपोर्ट कौन करेंगे, जो लोग जो इनसे कन्विंस हुए हैं। और उस मैटर में क्या था कि बहुत ही ज़्यादा लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी वाज इन द फेवर ऑफ हिटलर और इन द फेवर ऑफ इन द नाजी पार्टी। तो इस केस में क्या करता है कि ये रैली ऑर्गेनाइज करवाता है, किसके अगेंस्ट, रैली ऑर्गेनाइज करवाया अगेंस्ट वाइमार रिपब्लिक। अब जब वाइमार रिपब्लिक के अगेंस्ट जो रैली निकालेगा तो उसमें क्या हुआ कि पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ हिटलर एंड इसके बीच में क्या हुआ कि लोगों के बीच में यूनिटी और भी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। और यूनिटी बढ़ने की वजह से लोग जो थे रेड बैनर के साथ स्वास्तिका, यानी कि स्वास्तिका जो हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है एक गुड फॉर्चून के फॉर्म में और एक वेल बीइंग के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट यूरोपियन कंट्री जो है वो हेट के फॉर्म में यूज़ करता है। और हेट के फॉर्म में इसलिए यूज़ किया क्योंकि डेमोक्रेसी का जो रोल जो है वो उसमें क्या है कि लोगों के बीच में कनेक्टिविटी और लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा होता है। बट हिटलर इस केस में क्या चाह रहा था कि लोगों का सेंटिमेंट तो जुड़े, बट हिटलर जो चाह रहा था चेंज करना प्रोपेगेंडा फैला करके, वो चेंज वो खुद ही कर सकता है। वही जानता था कि हमें क्या करना है जर्मनी के ऊपर में। तो इस केस में क्या था कि रेड बैनर के साथ साथ ये रैली जो था वो अगेंस्ट, और ये रेड बैनर प्लस स्वस्तिका मार्क के साथ, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। कहाँ पे, ये जर्मनी यूज़ किया था, नाजी पार्टी यूज़ किया था। बट इसका रियल जो मीनिंग होता है, क्या चीज़ होता है, गुड फॉर्चून। ये कहाँ पे, इंडिया में। बट एज अ हेट इसका जो यूज़ किया था ये यूरोपियन कंट्री किया था। किसके अगेंस्ट में, तो वाइमार रिपब्लिक अगेंस्ट में, ताकि कैसे भी करके वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको कैसे भी करके साइड करके हम लोग नाजी पार्टी का डोमिनेंस जो है वो हम लोग एस्टेब्लिश कर सके। ओके, सो अब इसके बाद यही सेम चीज़, यही सब प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद, यही सब वर्ड आने के बाद जो है वहाँ की पब्लिक जो है हिटलर को मसीहा, एक तरह से मसीहा के तौर पे देखती है, मसीहा के फॉर्म में देखती है कि ये यही है
लीडर जो है जो हमारी कंट्री को फिर से सेव करेगा, हम सबको लाइवलीहुड देगा, हम सबको जॉब क्रिएट करेगा, हम सबको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देगा, हम सब का लाइवलीहुड अच्छा होगा। बट आगे क्या होता है हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक जो भी आप लोग अभी जो भी हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं, आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले सेकंड वाले लेक्चर को भी ज़रूर करें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।